हेलो गाइज, पार्ट 1 में हमने किए डिवाइन दर्शन, गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग के। लेकिन अब पार्ट 2 होने वाला है और भी ज्यादा क्रेजी। इस बार होगी अमृतसर दी गलियां में एक छोटी सी ऑटो राइड, फुल पंजाबी वाइब्स। फिर चलेंगे वाघा बॉर्डर जहां एनर्जी लेवल होगा 1000%। और एंड में गोल्डन टेम्पल का इतना खूबसूरत नाइट व्यू कि दिल बोले वाह। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अपनी रिक्शा जो जाएगी अट्टारी वाघा बॉर्डर हमें लेके। सवारी निकल चुकी है। Gate is the oldest gate of the city. It's more than 200 years old. It was built in 1817 by Maharaj. Only one gate is the original one. Other 11 gates were rebuilt by British government. I will show you that also. Government is making museum inside of this gate, so it's under construction. So that's why they made another road from this side to go to Golden Temple. Actually, our almost half our old Amritsar city is under construction because our old water supply system and drainage system was built by British. Oh wow. And after a long time, after almost 80 years, government realized now we should replace it. Yeah. I think they were still waiting. British will come again and they will fix it. So you can imagine how slow is our local government. They took 80 years to just realize it, and I don't know how much time they will take to replace it. Maybe another 80 years. We are Indian. Yeah. We are slow in everything. We are fast only in one thing, to make population. So guys, this building is 125 years old, British time building. Now it's a college. But before college it was a palace. Palace of Maharaja Ranjit Singh. And Maharaja Ranjit Singh was the same guy who donated more than 450 kilogram gold to Golden Temple. Before that the name of Golden Temple was Harimandir Sahib. Because in the beginning that temple was made by the same marble which is used in Taj Mahal, the white marble. But after donating his gold, it was covered by gold, then it converted in Golden Temple. He was the one of the richest king of Punjab state. He had the most expensive diamond of the world, Kohinoor. Now the British have it in Crown of Victoria in the museum. They steal it from India. But we hope one day we will get it back. Even one British guy, he asked me very silly question. He asked me, Vicky, why Golden Temple is in Amritsar? Why not somewhere else? I said, British tried to take it to England, but it did not work. It was too heavy for them. That's why British Museum is free for everybody, because nothing belongs to them. They don't have any other history. They are taking history from other countries. I thought only Punjabis are stupid, but stupidity is universal. Do you know what is the national food? The national food is chicken tikka masala or chicken butter masala, something like that. Chicken tikka masala it is. Chicken tikka masala I guess. ये जो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये है जीटी रोड। ये शुरू होता है कोलकाता के वेस्ट बंगाल और ये एंड होता है पाकिस्तान के लाहौर पंजाब में। Look at that structure. We call it India Gate. India Gate because Amritsar is the first city from Pakistan and Afghanistan side, and our city starts from here. So from Pakistan. Eiffel Tower, but just the bottom part of it. Yeah. we can't afford go to the Eiffel Tower, so we are starting to Like make our Eiffel Tower. Like a stone cheap bottom Eiffel Tower. We are best in duplicacy. Even sometimes we make better than real. We just started it, and maybe next time it will be big whole Eiffel Tower. ये पुराना है? So yeah, it's made around 25 years ago by last government. So guys, from Pakistan and Afghanistan side, this is the beginning of the first city of India. So this is real actual India Gate from this side. And look on that guy on the horse. His name was Sham Singh Atari. Okay. His last name was Atari. He was a brave general in Indian Army before the partition in Maharaja Ranjit Singh Army. So Atari. Sham Singh Atari. He born in Atari village. Atari is his hometown. You can say he is the king of this area. He was the king of this area. So that any guy on the horse and you don't know about his death, you can see the footstep of the horse.
footstep. If the all 4 feet of the horse will be on the floor, if the all 4 feet will be on the floor, it means officially he was a brave guy, but he died by natural death. If the all 4 feet will be on the floor, he was a brave guy, but died by natural death. If 1 foot will be lifted like him, it means he got injury in the war, but he died somewhere else, like on the way or in the hospital or at the home, but due to injury, like under the treatment. And if the both feet of the horse will be lifted in any statue, like our Shivaji, Jhansi Ki Rani, it means they died in the battle during the war. अपन है अमृतसर के बहुत बार और अपने गैंग का है अभी ब्रेक 10 मिनट का। तो चलो यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो अपनी चाय आ चुकी है, तो पीने के बाद मिलेंगे। चाय पी ली है, चाय की टेस्ट एकदम मस्त, एकदम कड़क चाय। तो चलो अभी निकलने का टाइम आ चुका है इधर से और निकल चुके हैं अपनी सवारी। ये है अपना पार्किंग जोन, ये बॉर्डर का। अभी अपन पहुंच चुके हैं 18 वाघा बॉर्डर और अभी तो ये खाली दिख रहा है, थोड़ी देर में देखो खचा खच भरेगा। तो अपन अभी चलेंगे सीधा स्टेडियम में और यहाँ पर आपको सिर्फ कैमरा, फ़ोन, अपना वॉलेट और रुमाल, ये 4 चीज़ अलाउड है और खुद बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। अपन अभी बॉर्डर साइड पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखो आगे का जो है लास्ट रेस्टोरेंट है और ये तो लास्ट ठेले है ये सब। उसके बाद आगे आएगा पाकिस्तान और अपन है हिंदुस्तान, भारत माँ के इधर। और यहाँ पर देखो यार बॉर्डर, फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है यार, देशभक्तों वाली फीलिंग आ रही है इधर। लाहौर यहाँ से 22 किलोमीटर है और ये शायद ये लास्ट मार्क। उसके बाद आएगा पाकिस्तान। चलो एंट्री यहाँ से स्टेडियम के लिए। अभी सीट पे बैठ चुका हूँ, यहाँ पर सब कुछ फ्री है, यहाँ पर एंट्री। ये है अपना साइड, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की लगभग पाकिस्तानी साइड है। 6,300 किलोमीटर लंबी और जस्ट विजिट किया हूँ यार, बहुत मज़ा आया। अंदर से जो छाती ऊंची हो गई वो तो भाई मानना पड़ेगा, ये जगह मस्ट विजिटेड इफ़ यू आर कमिंग अमृतसर। बहुत अच्छा फील देगा आपको, बहुत ज़्यादा प्राउड एनर्जेटिक फील देगा आपको यार, मज़ा आ गया। और चलो आ गया स्पॉट EC4, इधर ही अपनी ऑटो, अपनी सवारी निकल चुकी है अटारी से। अभी वो वाघा बॉर्डर हो गया, अभी फिर से जाएंगे गोल्डन टेम्पल। हॉस्टल में अपन पहुंच चुके हैं, बैग मैंने हॉस्टल में ही रखी है। तो चलो, गोल्डन टेम्पल के बाहर का मार्केट यार, और आपको इधर बहुत मज़ा आएगा अमृतसर में, एकदम शांति सी फीलिंग आएगी यार गोल्डन टेम्पल के अंदर। आपको क्या ही बोलूँ मैं, पूरा आज अमृतसर घुमाऊँ। एक स्पॉट अभी भी बाकी है, दुर्गियाना मंदिर, देखते वो मैं ट्राई करूँगा कवर करने का। अभी इधर गोल्डन टेम्पल में देखते हैं कि दर्शन के लिए कितना टाइम लगता है। बट भाई वो एक दूसरा गोल्डन टेम्पल है, मतलब अमृतसर में एक नहीं 2 गोल्डन टेम्पल है, जैसे अपने गाइड ने अपने को बताया था। जूता रख लिया है उधर फिर से, तो अभी अंदर चलेंगे और दर्शन करेंगे यार। दर्शन करने की बहुत इच्छा है इसमें, तो बाहर से भी आपको रात का व्यू दिखाऊंगा
और चलो अंदर चलते इस गेट से। यहाँ पर देखो ये अपना गेट भी सुंदर है, अंदर का टेम्पल तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। क्या ही खूबसूरत दिख रहा है, इसका रिफ्लेक्शन तक इसमें आ रहा है। और भाई क्या खूबसूरत दिख रहा है यार, दिन से ज़्यादा खूबसूरत तो है रात में दिख रहा है, पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इधर। वाहे गुरु जी। ये जो प्लेस है ये है लंगर हॉल, और ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन, जो इसकी कैपेसिटी जाती है 8 लाख तक खाने के लिए, जो कोविड के बाद हुआ था। तो चलो अभी अपन जा रहे लंगर चखने। चलो मैंने मेरा लंगर खा लिया है। लंगर के टेस्ट के बारे में बात करूँ तो ना करना ही बेहतर है, क्योंकि वो एक प्रकार का प्रसाद है और प्रसाद की मैं ना ही बुराई कर सकता हूँ ना कुछ। तो वो तो ऊपर वाले का प्रसाद है, तो मज़ा आ गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन। अभी चलेंगे दुर्गियाना मंदिर, उसके पहले गोल्डन टेम्पल की बात करता हूँ। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और एंड हुआ था 16th सेंचुरी में, तब ये गोल्ड का नहीं था, तब ये था अपना इसका मार्बल का था। उसके बाद 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह जी ने इन्होंने गोल्डन टेम्पल को जो था उन्होंने 450 kgs ऑफ गोल्ड से कवर किया है, अंदर से और बाहर से। अंदर का तो वीडियो निकालना अलाउड ही नहीं था गुरुद्वारे का। और इसका नाम है श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। हर मंदिर मतलब सबके लिए, ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं है। गोल्डन टेम्पल हो गया ना, इधर आपको VIP एंट्री नहीं मिलने वाली है, जैसे नॉर्मल टेम्पल्स में मिलती है पैसे देकर। इधर वैसा नहीं है। इधर कोई भी हो, तुम कितने भी बड़े तोड़ो, तुम्हारे को एंट्री फ्री नहीं है, फ्री है सॉरी। तुम्हारे को कुछ ज़्यादा VIP सुविधा नहीं मिलने वाली है। यू आर सेम देयर, कोई भी हो, कोई भी, चाहे एक गरीब हो चाहे वो अरबपति हो, सबके लिए सेम है वो चीज़। तो सॉरी गाइस, मैं अभी दुर्गियाना टेम्पल कवर नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और कवर करना भी सेंस नहीं बन रहा था इतनी रात को। और दूसरा मतलब, अगर आप अमृतसर आओगे ना तो मिनिमम 2 दिन का तो स्टे होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा कैसा संडे में बना रहा हूँ। आज संडे में घूम रहा हूँ, तो संडे में क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑफिस में छुट्टियाँ रहती है। तो आसपास वाले लोग जैसे चंडीगढ़, लुधियाना, ये साइड के लोग जल्दी आते हैं, मतलब संडे को आ जाते हैं, तो भीड़ ज़्यादा बढ़ती है। तो इसीलिए अगर आप अमृतसर आओगे, वीकडेज में आओगे तो भी, वीकेंड्स में आओगे तो भी 2 दिन का मिनिमम स्टे होना ही चाहिए, तो आप अच्छे से घूम पाओगे। क्योंकि देखो ना, मेरे से जलियांवाला बाग ढंग से हुआ और ना मैं दुर्गियाना टेम्पल जा पाया, और बहुत सारे स्पॉट्स शायद मेरे स्किप हो गए। अगर आना होगा तो मिनिमम 2 डेज, क्योंकि आपको देखो, आपको सिर्फ गोल्डन टेम्पल में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका, जलियांवाला बाग जल्दी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ना जलियांवाला बाग कवर घूमना, उसके बाद जाना गोल्डन टेम्पल, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में कैसे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है वो, और वाघा बॉर्डर थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो आप पहले करना। और सेकेंड डे आप दुर्गियाना टेम्पल जा सकते हो, उसके बाद आप वॉर म्यूजियम जा सकते हो, जहाँ पर पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स है जो इंडिया ने कैप्चर किए। और मेरा जो आज का खर्चा हुआ है वो मात्र 420 रुपया हुआ है। वो उसमें आपका ऑटो हो गया, वाघा बॉर्डर का आने जाने का छोटा सा टूर भी था वो एक, और दूसरा मतलब अपना छोले भटूरे थे उसके, तो बस। और रात का खाना वैसे मैंने उधर ही खाया, लंगर, तो बस 2 टाइम आप लंगर में भी खाना खा सकते हो। लंगर का खाना तो टेस्टी ही रहेगा।
तो आज का वीडियो इधर ही खत्म कर देते।